Okay. Am I audible to everyone? Yes, Akshay, we can hear you. Okay. Good afternoon, everyone. A very warm welcome to all of you. I hope all of you are doing well in this COVID-19 situation and trying to cope with the halts this pandemic has created. Thank you for joining us today. I am Aksa Sattar and I will be moderating today's webinar. Before introducing our guests for today, I will briefly tell you about the force behind this webinar. The webinar has been organized by Rotary Club of Faisalabad Kohinoor and Youth at Work in collaboration with Punjab Youth-led Policy Forums project Bol Ke Lab Azad Hai Tere. The stakeholders for this project are Kamyab Jawan, UNICEF, School of Leadership Foundation, UNDP, and United Nations Fund for Population Activities. In this webinar, we are going to discuss about what harassment actually is, what the Bol Ke Lab Azad Hai Tere project is about, and most importantly, how Pakistan judiciary system and laws provide protection against different types of harassment. I will now introduce our guest for today. One of our guests for today is Rabia Ilyas. She is a clinical dietitian, has served as social activist, and has volunteered for various projects. Rabia is campus ambassador for Punjab Youth-led Policy Forum and also serving as secretary at Rotary Club of Faisalabad Kohinoor. Thank you for joining us, Rabia. Our other guest for today is John James. He's an educationist and working as a teaching support associate at Sindh Education Foundation. He's also working as a principal at one of a Presbyterian Education Board school. John has been to USA for Global UGRAD program and has also volunteered at United Nations Civic Education Program. We all welcome you, John. Okay. Thank you, Akshay, for this beautiful introduction. Before starting our discussion, I just want to mention that all the participants will have the opportunity to ask questions. So if you have any question for our guests regarding our topic, you can drop your question in the chat box and we will definitely try to include them at the end of the session. Okay. Diving right into it, starting from you, John, what do you think harassment is and how would you define it for our audience from your point of view? Okay, Assalamu alaikum, everyone. Firstly, I'm very sorry about my that you guys cannot see me because my laptop's camera is out of order. I'm kindly pardon me. अच्छा, सबसे पहले अगर मैं harassment जो है इसकी टर्म को अगर हम देखें तो ये टर्म फ्रेंच एरा से स्टार्ट हो रही थी, यानी फ्रेंच ने ये टर्म फर्स्टली यूज की, फिर उसके बाद इंग्लिश ने इस टर्म को लोन किया. तो मींस कि हरासमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 1572 से इस टर्म को हम लोग देखते आ रहे हैं. मींस कि इट्स नॉट अ न्यू थिंग. तो अगर हम हरासमेंट को देखें तो हम ये देखते हैं कि आप लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर, डेली रूटीन के अंदर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों से इंटरैक्ट करते हैं. ठीक है, कुछ बिहेवियर अच्छे होते हैं जिससे आपको डिफरेंट आपके इमोशंस अराउज होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल someone's behavior make you happy, someone's behavior make you sad or disgust or sorrow. तो ये सारे वो बिहेवियर होते हैं जो कि आपको अनकंफर्टेबल नहीं बना रहे होते, बट दे आर जस्ट स्टिमुलेटिंग योर इमोशंस. लेकिन कुछ ऐसे लोगों कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए जाते हैं, जो कि अनवांटेड होते हैं, जो कि ह्यूमिलिएटिंग होते हैं. तो इन सारे काइंड्स के बिहेवियर्स को हम हरासमेंट की कैटेगरी में लेकर आते हैं और इसको हम हरासमेंट कहते हैं. वो बिहेवियर्स फिजिकल भी हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकते हैं या विजुअल भी हो सकते हैं. तो अगर हम हरासमेंट को एक नैरो डाउन करें तो अनवांटेड बिहेवियर या ऑफेंसिव बिहेवियर या ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर्स को हम हरासमेंट कहते हैं. Yes, and I think इस मामले में बहुत सी organizations काम कर रही हैं for the awareness or some to provide solidarity to people who are determined to stand against it.
So I would like to ask this from you, Rabia. You as a campus ambassador to Punjab Youth-led Policy Forum, what do you think? What is the main concern of the project Bol Ke Lab Azad Hain Tere, and how it is providing privilege to different sections of our society? Okay, Rabia, can you hear me? Um, let me unmute you. Okay. Okay, Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for the lovely introduction. And the topic is very great, and I see audience. I see a huge number of audience because I think सबको पता है कि इस टॉपिक को के बारे में बात करने की कितनी ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में. तो I'm very happy to see wonderful audience. Starting from your question, आपने पूछा कि प्रोजेक्ट किस बारे में है. Basically, as the name indicates, बोल के लब आज़ाद देते हैं. This is about reducing and establishing a force against sexual harassment. Basically इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है, जो इसका थीम है, वो ये है कि हर पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में एक एंटी हरासमेंट कमेटी हो, जहाँ जो स्टूडेंट्स हैं या बाकी एम्प्लॉयज़ हैं वो जाके अपने इश्यूज़ को डिस्कस कर सकें और उसके बारे में कोई एक्शन लिया जा सके. तो there is an act in Pakistan constitution that is the 2010 act against harassment with women in workplaces. इसके अकॉर्डिंग हर यूनिवर्सिटी में एक एंटी हरासमेंट कमेटी होनी चाहिए. और आई एम श्योर कि आप में से मेजॉरिटी को नहीं पता होगा इस एक्ट के बारे में, और आपको इवन ये भी नहीं पता होगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कोई हरासमेंट कमेटी अगर बनी है तो वो मतलब फंक्शन में है या उनके मेंबर्स कौन हैं. बिकॉज आई हैव बिन थ्रू दिस फेज जहाँ पे जो हमें ये कहा गया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा था. पहला टास्क ये था कि पता करें कि आपकी यूनिवर्सिटी में कोई कमेटी है या नहीं है, और उसके लिए प्रॉपर हमें कंट्रोलर ऑफिस, कभी DSA ऑफिस, कहाँ कहाँ जाके पूछना पड़ा था कि हमारी कमेटी है या नहीं. और मुझे प्रॉपर ये 2-3 हफ्ते लगे थे सिर्फ ये जानने में कि उसकी कमेटी के मेंबर्स क्या हैं. सो दिस इज़ अ बिग टास्क. हमें लगता है कि बहुत छोटा है काम, लेकिन ये इंश्योर करना बहुत इसकी ज़रूरत भी है और बहुत ज़रूरी है कि इसको किया जाए. और सेकेंडली जो हमारे प्रोजेक्ट का मकसद है कि हम अवेयरनेस दें. जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स सेक्सुअल हरासमेंट को मतलब करते हैं, या इवन देयर आर अ लॉट ऑफ हरासमेंट टाइप्स एज वेल. तो अगर कोई भी हरासमेंट से गुजर रहा है तो वो कैसे उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके, और कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जिनको वो कॉन्टेक्ट कर सके. सो दिस इज़ अबाउट द प्रोजेक्ट. और इस प्रोजेक्ट के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो हैं नेशनल यूथ लेड पॉलिसी, UNDP, UN वुमेन, इवन HEC पाकिस्तान टू, बिकॉज वो इस प्रोसेस का हिस्सा हैं. वो इस प्रोसेस में एक अथॉरिटी हैं जो कि इंश्योर कर सकते हैं कमेटीज़ फॉर्मेशन. और काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और भी हैं जो कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जैसे यूनिकैफ, यूनिसेफ, और हमारी कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे स्कूल ऑफ लीडर फाउंडेशन और जवान जो के नाम से जो इन हमारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब इनके स्टेक होल्डर्स हैं. So there are a lot of working going on regarding this issue. Thank you. Brilliant, Rabia. You guys are doing absolutely an amazing job by raising awareness on one side to a very sensitive issue. And I really appreciate what you all are doing in this scenario. And yes, there are very disturbing stats presented that Pakistan is among countries where around 93% of women have faced some sort of harassment or sexual misconduct in public places, even during their lifetime. So yes, John, coming back to you, what do you think how Pakistan's judiciary system or law enforcement institutions are providing protection against harassment to both men and women? And what can someone do when they find themselves to be victims of some type of harassment or know someone who has faced this horrible situation? Okay, firstly, before answering your question, I want to explain the types of harassment which we as youth or we as young generation should know
and should raise our voices against. तो सबसे पहले जो हमारी टाइप है वो आती है डिस्क्रिमिनेटरी हरासमेंट, कि हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन की बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेटरी हरासमेंट के अंदर आता है रेशियल हरासमेंट, सेक्सुअलिटी बेस्ड हरासमेंट या फिर एज बेस्ड हरासमेंट। ठीक है, रेशियल हरासमेंट के अंदर जैसे आपको कोई हरास कर रहा है आपकी रेस के ऊपर, आपके हेयर टाइप, कलर, आपका स्किन कलर, नोज शेप, इस तरह की किसी भी किस्म की हरासमेंट जो होती है उसको हम रेशियल हरासमेंट कहते हैं। इसकी अगर मैं एग्जांपल देता चलूं तो जैसे अगर किसी के कर्ली हेयर है, कर्ल है उनके किसी के हेयर में, किसी के स्ट्रेट हैं, किसी की नोज थोड़ी स्ट्रेट है या शॉर्ट है, तो उसके ऊपर जब कोई मजाक बनाता है या उसके ऊपर जब कोई कमेंट्स पास करता है या उसको जब कोई ये बोलता है कि यार योर बॉडी इज नॉट वेल शेप्ड, ठीक है, या फिर इसकी सर्जरी करवा लो या फिर इसको चेंज करवा लो, तो इट इज काइंड ऑफ अ रेशियल हरासमेंट। सेकेंड डिस्क्रिमिनेटरी हरासमेंट के अंदर जो हमारी अंडर उसके सब अंडर टाइप है वो है सेक्सुअलिटी बेस्ड हरासमेंट। इस टाइप की हरासमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी जैसे अगर किसी एक ऑफिस की एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी ऑफिस के अंदर रेशियो ऑफ मेल या रेशियो ऑफ फीमेल कम या ज्यादा है तो वहां एक इस किस्म की हरासमेंट का देखा जाना बहुत कॉमन पाया जाता है। अगर मेल ज्यादा है और फीमेल रेशियो कम है तो मेल जो ग्रुप है उस वर्क प्लेस का वो फीमेल को हरास कर रहे होंगे या उनको ओवर पावर कर रहे होंगे। सिमिलरली अगर फीमेल ज्यादा है और मेल रेशियो कम है तो वाइस वर्सा इसी तरह हो रहा होगा। तो दिस इज कॉल्ड सेक्सुअलिटी बेस्ड हरासमेंट। फिर उसके बाद आती है एज बेस्ड हरासमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोगों की एज के ऊपर लोगों को हरास कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बात को करते पहले मैं सबकी से नो ऑफेंस, लेकिन होता यह है कि जैसे कि हम लोग हमारी एज और हमारे जो एल्डरली लोग हैं, जो हमारी जो हमसे पहले लोग हैं, उनकी एज के अंदर एक जनरेशन गैप है, जिसकी वजह से जो एल्डरली ग्रुप ऑफ सोसाइटी है वो ये समझता है कि जो यंग जनरेशन है दे डोंट हैव एक्सपीरियंस, दे आर यंग माइंडेड, यंग ब्लड, सो वी नीड टू गाइड देम। वो सही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो हम लोगों को डिग्रेड कर रहे होते हैं इसी चीज के अंदर। तो ये एक एज बेस्ड हरासमेंट के अंदर अंदर चीज आ जाती है। और इसी के अगर हम अदर साइड देखें तो यंग लोग ये समझ रहे होते हैं कि ड्यू टू जनरेशन गैप हम लोग जो एल्डरली ग्रुप है उसको ज्यादा चीजों का पता नहीं है, उसको मॉडर्न टेक्निक्स का पता नहीं है, जो कि उस ग्रुप के लिए हरासमेंट का बायस हो सकता है। तो हम लोगों को इस चीज को भी बड़ा ध्यान में रखना होता है कि हम लोग एज बेस्ड हरासमेंट को हम नहीं करें, क्योंकि देखें अगर एज अ यंग जनरेशन वी आर स्टिल एक्सपीरियंसिंग मेनी थिंग्स एंड एज एन एल्डरली ग्रुप ऑफ पीपल, उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि यंग जनरेशन क्योंकि ग्रोथ फेज के अंदर है तो वो ग्रो कर रहे हैं और उनके पास क्या पता दूसरे एक्सपीरियंसेस हों, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद इसकी जो फोर्थ टाइप है डिस्क्रिमिनेटरी हरासमेंट की वो है डिसेबिलिटी बेस्ड हरासमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, उसकी बेसिस के ऊपर अगर हम किसी को हरास कर रहे हो तो वो एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग थिंग होती है। जैसे मोस्टली ये काइंड ऑफ हरासमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैसे अगर किसी का हार्ट फिजिकली वो स्पेशली एबल्ड है तो हम उसको कह रहे होते हैं ये तुम कैसे लिख रहे हो, या फिर तुम चलते कैसे हो, या तुम्हारा ये फेशियल फीचर जो है वो सही नहीं है। तो ये एक डिसेबिलिटी बेस्ड हरासमेंट होती है जिसको हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाती है हरासमेंट बेस्ड ऑन रिलीजन, कि हम किसी के रिलीजन के ऊपर उसको हरास कर रहे हो। इट इज ऑल्सो वेरी बैड काइंड ऑफ थिंग। फिर उसके बाद आता है पर्सनल हरासमेंट। इसके ऊपर मोस्टली जब हम अपने फ्रेंड सर्कल्स में बैठे होते हैं या अपने ऑफिस ग्रुप के साथ बैठे होते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसकी हम बर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसके ऊपर हम जोक्स क्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम अपनी पर्सनल जो एक लिमिटेशन होती है उस ह्यूमरस सिनेरियो की वो हम उसको क्रॉस कर जाते हैं और उसके ऊपर पर्सनल या फैमिली बेस या क्रिटिकल रिमार्क्स
पे करना शुरू कर जाते हैं, जो कि एक पर्सनल हरासमेंट के अंदर चीज आ जाती है। फिर फिजिकल हरासमेंट आ जाता है कि हम मोस्टली हम ये फिजिकल हरासमेंट देखते हैं स्कूल्स के अंदर होता है, कॉलेजेस के अंदर, या इवन अभी भी, यानी जो दूसरी एल्डर यूथ है हमारी, उसके अंदर भी क्या होता है कि हम मजाक मजाक में किसी को थप्पड़ मार देते हैं, या फिर किसी को किक कर देते हैं, या फिर किसी की प्रॉपर्टी डैमेज कर देते हैं, फोन उठा के फेंक दिया, या फिर उसका कोई भी लैपटॉप डैमेज कर दिया। तो ये उसकी फिजिकल हरासमेंट के अंदर चीज आ जाती है कि किसी को हम फिजिकली हरास कर रहे हैं। फिर उसके बाद आती है पावर हरासमेंट। ये इस टाइप की हरासमेंट मोस्टली हम लोग ऑफिस के अंदर देखते हैं। हम लोग देखते हैं, अगर हम स्कूल्स की बात करें तो उधर देखते हैं कि जो हायर पोस्ट पे होते हैं वो इस तरह की चीज कर रहे होते हैं। ये काइंड ऑफ हरासमेंट जो होती है वो मोस्टली हायरार्की या टीम मैनेजमेंट टीम्स के अंदर आती है, जहां एक हायरार्की चल होती है। मींस कि अगर किसी के पास पावर है तो वो अपने हैं उनको अपनी पावर की बेस के ऊपर हरास कर रहा है। फिर उसके बाद आती है साइकोलॉजिकल हरासमेंट। कैन यू ऑल हेयर मी? Yes, John, we can ओके hear you. ओके। साइकोलॉजिकल हरासमेंट, जैसे कि आप सब ये जानते हैं कि कोई भी शख्स, हर कोई शख्स आजकल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से या साइकोलॉजिकल मिसमैनेजमेंट से डील कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हर किसी की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, टेंशन्स होती हैं। तो इस चीज को हम लोग फर्स्टली, किसी की भी साइकोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को भी कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है, उसको हम लोगों को मॉक नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई किसी भी वजह से अगर कोई किसी भी टाइप का बिहेव कर रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन हो सकता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह हो सकती है जिसके लिए वो उस टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है। अब जब तक हम लोग उस रीजन को नहीं जान लेते, हम लोगों को किसी को साइकोलॉजिकली मॉक या हरास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि अगर कोई फॉर एग्जांपल हमारी वर्क प्लेस के अंदर अपसेट है, तो हम लोग उसके ऊपर जोक्स क्रैक करने लग जाते हैं। हमारे बेशक इंटेंशंस बुरे नहीं होते, हम चाहते हैं कि वो उस स्टेट से निकले, लेकिन कभी कभी हम उस शख्स को हरास कर रहे होते हैं। मीन्स के हम लोग वी आर जस्ट जजिंग द बुक बाय इट्स कवर। फिर उसके बाद आती है सेक्सुअल हरासमेंट। इस काइंड ऑफ हरासमेंट के ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और सेक्शन 509 अंडर ऑफ पाकिस्तान पैनल कोड के अंदर इसके ऊपर मेंशन है, बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट मींस के 3 साल जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा, ठीक है। मींस के ये इसकी सजा और इसके ऊपर जो भी जुर्माना है वो मेंशन है। मींस के हम किसी को भी सेक्सुअली हरास करें, इसको अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता चलूं, तो सेक्सुअल हरासमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। तो इसके ऊपर हम लोगों को बहुत ध्यान करने की जरूरत है। फिर उसके बाद हमारी आती है वर्बल हरासमेंट, कि हम लोग किसी को वर्बली हरास कर रहे होते हैं, किसी की फैमिली के ऊपर बात कर रहे होते हैं, किसी की जेंडर के ऊपर वर्बली उसको हरास कर रहे हैं, किसी की बॉडी टाइप के ऊपर उसको हरास करें। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी टाइप, अगर कोई बहुत ज्यादा स्किनी है तो उसको हम कह रहे हैं तुम खाते नहीं हो क्या। अगर कोई बहुत ज्यादा चबी है या फैट कैटेगरी में आता है, तो हम लोग उसको कहते हैं खाना कम कर दो, बिकॉज बट दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। क्योंकि अगर कोई कम खा रहा है वो उसके डाइट नीड्स हैं, अगर कोई ज्यादा खा रहा है वो उसके डाइट नीड्स हैं, और वो उसकी प्रॉब्लम है कि वो उस चीज को किस तरह से डील कर रहा है। तो इट्स नॉट नन ऑफ आवर बिजनेस। फिर उसके बाद आती है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग आजकल बहुत बहुत ज्यादा कॉमन है पूरी वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि हम देखें हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हम लोग कोविड की वजह से तो बहुत ही ज्यादा चले गए हैं, तो हम लोग किसी की सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं, या किसी को अगर कोई पोस्ट कर रहा है तो उसके ऊपर मोस्टली लोग सैड रिएक्ट कर देते हैं, अगर वो बेशक वो हैप्पी पोस्ट है। अगर हम लाफ्टर रिएक्ट कर देते हैं, बेशक वो कोई बहुत अच्छी किसी ने कोई बात कही हो पोस्ट के ऊपर। तो इट्स ऑल्सो वेरी ह्यूमिलिएटिंग। तो लोग इसके ऊपर भी काफी ज्यादा डिस्करेज हो जाते हैं, अपनी सेल्फ स्टीम लूज कर जाते हैं, और अपनी अचीवमेंट्स को फिर लोग चैरिश नहीं करते अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ना। तो इस तरह की जो साइबर बुलिंग है ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है, और इससे भी हम लोगों को अगर कहीं हो रही है तो आप लोग उसके ऊपर आवाज उठाएं। अगर कहीं
कोई कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लें। प्लस मैं ये बात करना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी, आपका फ्रेंड, आपका कोई भी सर्कल में, या आप खुद हैरासमेंट के शिकार हो रहे हैं, तो किसी से लाजमी बात करें। आपका वो क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स, या आपका कोई भी जो आपका वेरी क्लोज हो, उसके साथ लाजमी शेयर करें। उसको अपने अंदर जितना दबाते जाएंगे, इट विल क्रिएट अ पॉइजन एंड वन डे यू विल सफर फ्रॉम दैट। लोग मोस्टली, क्या होता है कि लोगों के साथ किसी भी किस्म की हरासमेंट हो चुकी होती है, बचपन के अंदर, यूथ के अंदर, या लाइफ के किसी भी स्टेज के अंदर, लेकिन लोग उसको दबा देते हैं। हमारे कल्चर के अंदर ये है कि चुप रहो, कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं बताओ, तो क्या होगा कि इससे हमारी रिस्पेक्ट का बरकरार रहेगी। लेकिन इससे क्या होता है कि हम अपनी बॉडी को, अपने माइंड को पॉइजन कर रहे होते हैं, जिससे हमारी बहुत सारी जो डेली लाइफ काम होते हैं वो जिससे अफेक्ट हो रहे होते हैं। जैसे हमारा एग्रेसिव हो जाते हैं हम लोग सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते अपने डेली टास्क के ऊपर। तो आप किसी से लाजमी बात करें और इसको लेकर आए सबके, यानी जो भी आपका क्लोज वन है, और सोल्यूशंस निकालें कि इससे किस तरह डील किया जा सकता है। अकेले कोई नहीं इससे डील करे। और अगर किसी को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप उनसे शेयर करें, अपने टीचर से शेयर करें। अगर आपको फिर भी कोई कंफर्टेबिलिटी नहीं फील करे तो यू कैन शेयर विद अस। वी आर ऑलवेज हियर टू लिसन वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, एंड वी विल try to solve that problem or try to come to a solution. Thank you so much. Thank you, John. That was very informative to us to know. Talking about different forms of harassment, आपने इसमें mention किया cyber harassment को. तो Arapya, I would like to ask you how one can cope with cyber issues and where to report if कि वो cyberly उसको harassment हो रही है, तो वो कहाँ पे उसको report करे, and what actually is cyber harassment from your point of view. Okay. Rabia, can you hear me? Yes, actually it's about unmute button. So yeah, first of all, I'm so delighted to have this increase in my knowledge by John. उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ डिफाइन किया कि this is right, this is wrong. तो मेरा ख्याल है हम सबको बहुत ज़रूरत है कि हमें पता हो कि अगले बंदे का या हमारा कौन सा ऐसा एक्ट है जो कि हरेसमेंट में आ सकता है, जो कि रॉन्ग हो सकता है। तो हमें बहुत ज़रूरत है इस नॉलेज की। और जैसे अक्सर ने क्वेश्चन किया साइबर क्राइम के बारे में, साइबर हरेसमेंट के बारे में, तो साइबर हरेसमेंट बहुत बहुत कॉमन हो चुकी है और वो इतना हैविक क्रिएट कर रही है हमारी सोसाइटी में, स्लो बाय स्लो कि इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसकी चेन को तोड़ना ना, ये चेन बहुत स्ट्रांग होती जा रही है डे बाय डे। तो इसकी चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में इसके खिलाफ एक एक्ट, बिल्कुल पाकिस्तान पार्लियामेंट ने 2016 में एक एक्ट किया था, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, पीका कहते हैं इसको। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के लिए इन्होंने प्रॉपर एक एक्ट बनाया, क्योंकि देखा गया था कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का, जैसे मीडिया का, जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, इसके क्राइम्स में भी इजाफा हो रहा है। तो ये हुआ। और फिर जैसे सबको FIA का तो पता होगा ना, फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी का, तो आपने इसके कुछ केसेस भी देखे होंगे सोशल मीडिया में कि फेडरल FIA ने ये वाला केस सॉल्व किया, FIA ने ये वाला केस सॉल्व किया। तो दिस इज़ द एजेंसी वेयर यू कैन रिपोर्ट द साइबर क्राइम्स। अगर आपको कोई भी साइबर या ऑनलाइन किसी भी किस्म के हरेसमेंट का आपको है कि आपको हरेसमेंट फेस करनी पड़ रही है, या आप कोई भी ऐसा क्राइम देख रहे हैं जिसको आपको लगता है कि ये
मतलब इसको बंद होना चाहिए, तो यू कैन फाइल योर रिपोर्ट टू द FIA। आप इनकी हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9911 इनकी हेल्पलाइन है, और FIA की एक वेबसाइट है जहां आप प्रॉपर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब बात ये है कि साइबर हरेसमेंट जो है ये क्या चीज़ है। मेरा ख्याल है इस पे और मज़ीद बात करने की, जॉन ने बहुत अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन मेरा ख्याल है इस पे और बात करने की ज़रूरत है। वो ये है कि देखें, आप किसी की पिक्चर क्लिक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी की पिक्चर क्लिक करते हैं, आपको लगता है कि कोई गरीब बैठा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, कोई आजकल ये बहुत है कि छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस लोगों ने शुरू किया हुए हैं, हम लोग उनको अप्रिशिएट करने के चक्कर में उनकी पिक्चर लेते हैं और उसको पोस्ट कर देते हैं। बाद में देखा अक्सर सिचुएशंस में मैंने देखा है कि बाद में कोई कमेंट में पोस्ट कर रहा होता है कि क्या कि ये मेरे रिलेटिव हैं या ये मेरा फ्रेंड है, बट ही सेड या शी सेड कि मैंने तो परमिशन नहीं दी थी पिक्चर के लिए। तो दिस इज अ हरेसमेंट, ठीक है। तो हमारी जो यहाँ जो अक्सर लोग हैं, मेरा ख्याल है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को या सोशल वेलफेयर से कनेक्टेड होंगे, तो ये हम बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, और हमें इन चीज़ों को बहुत ध्यान से करना चाहिए, ठीक है। पोस्ट जो हैं अब अक्सर लोग कर रहे होते हैं, कुछ डायरेक्टेड होते हैं, कुछ अनडायरेक्टेड होती हैं, और वो किसी ना किसी को हर्ट कर देती हैं या किसी को टारगेट कर रही होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए, हमें इस बारे में बहुत ख्याल रखना चाहिए। आजकल की जो फीमेल्स हैं, इवन मेल्स, दे आर बीइंग हरेस्ड, ठीक है। अब बहुत हरेसमेंट हो रही है, बट दे डोंट स्पीक अप। जहाँ जैसे वो स्पीक अप करते हैं, कुछ हमारा इशू ये है कि हम उनको एक तो राइट रॉन्ग का नहीं पता होता, पाथवे का, कि हमने कौन सा पाथवे लेना है, या अगर वो करना चाहते हैं तो जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं ना, दे डोंट सपोर्ट दैम। इवन जो एजुकेटेड हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो कि उनके सिबलिंग्स हैं, जो कि जनरेशन जो हमारे से अपर जनरेशन है, उनकी तो चलो हम कह दें कि उनका ब्रॉट अप या उनका माइंडसेट एक बन चुका है इन चीज़ों के बारे में, या दे आर नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशंस वी आर फेसिंग। तो वो उनका रिएक्शन उसके बारे में इतना वो सॉलिड या इतना वो नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारे साथ वाले हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो तो जानते हैं ना इस सिचुएशन को। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं, अगर उनको किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना है, हमें लगता है कि इनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है इस मामले में, तो वी शुड स्टैंड विद दैम, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का साथ दें। साइबर हरेसमेंट जो है, जो ऑनलाइन हरेसमेंट देखी जा रही है आजकल, इससे बहुत तबाही मच रही है, ठीक है। और इसको रोका जा सकता है। गवर्नमेंट ने हमारे, सबसे पहले तो गवर्नमेंट का होता है ना कि गवर्नमेंट इस बारे में एक्ट्स दे, इस पे कोई काम हो, तो वी हैव दैट नाउ। FIA माशाल्लाह दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। आई हैव अ फ्रेंड फ्रॉम, ही इज वर्किंग इन FIA, और वो जैसे बता रहे होते हैं कि ऐसे केस आता है, वी सॉल्व देम लाइक दिस, और तो बहुत वो स्मूथ वे है, ठीक है। उसमें कुछ भी आउट नहीं होता। आपकी कोई आप यू कैन रिपोर्ट एनीथिंग, कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, गो टू उनसे बात करें, FIA के हेल्पलाइन पे बात करें कि जी ये सिचुएशन है, मैं कैसे इसको रिपोर्ट कर सकता हूँ, वो आपको प्रॉपरली सारा गाइड कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों के बारे में बोलें। और आपको ये टॉक बहुत यूजुअल सी लग रही होगी, कैजुअल सी, बट अगर किसी को इसका रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई भी चीज़ या कोई स्टोरी आपके जहन में ऐसी आ रही है कि आप किसी से शेयर करना चाहते हैं या यहाँ शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, तो प्लीज़ डू शेयर। और अब नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू स्पीक अप। Right, yes. Let me check if we have questions from the audience. Yes, there are two questions from Farwa Shah, if I'm pronouncing her name correctly. जी John, please, if जी, फरवा ने सबसे पहले क्वेश्चन किया था, मैं देख लूँ, EEOC पर, मीन्स कि काइंड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट है। इसके ऊपर पाकिस्तानी लॉ के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर कोई भी शख्स, अगर कोई, जैसे हम लोग मोस्टली बाजार के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर, इवन यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स के अंदर देखते हैं कि कोई लड़की गुजर रही है तो किसी ने पीछे से सीटी मार दी। सॉरी इफ आई एम वेरी एक्सप्लेनिंग इट वेरी ओपनली। किसी ने कोई कमेंट पास कर दिया, किसी ने हाउलिंग साउंड क्रिएट कर दी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर ये बात बताता चलूँ तो हम लोगों को, हमारे पेरेंट्स को ये चीज़ बतानी चाहिए अपने घर के मेल मेंबर्स को
कि हर फीमेल की उतनी ही रिस्पेक्ट होती है जितनी आपकी मदर और आपकी सिस्टर्स, आपकी कजन्स, आपकी कोई भी फीमेल रिलेटिव की है। ठीक है, ये हमारी जो नरिशमेंट होती है उसके अंदर, या जो हमारा ब्रॉटअप होता है उसके अंदर ये चीज आनी चाहिए, नर्चरिंग के अंदर, सॉरी नॉट नरिशमेंट। ठीक है, तो ये चीज बतानी चाहिए। और अगर कोई लड़की इस तरह का चीज कर रही है तो वो भी उसके पेरेंट्स को उसको चीज सिखानी चाहिए। ठीक है, तो अगर इस तरह का कुछ भी हो रहा है तो आप डायरेक्टली कंप्लेन अबाउट इट टू एनी अथॉरिटी नियर बाय यू, और उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, और उसके ऊपर जुर्माना भी है प्लस उसकी पनिशमेंट भी है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जाम्पल जो भी अथॉरिटी है, इट्स दैट अथॉरिटी इज नॉट टेकिंग दिस थिंग वेरी सीरियसली, देन यू कैन गो टू हायर ऑफिशियल्स। और अगर वो भी इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे तो देन यू कैन यूज the help of the court or the help of the judiciary. उससे क्या होगा कि ना तो आपकी आपकी अपनी रिस्पेक्ट कायम रहेगी, ठीक है, आप अपने आप को हरासमेंट से बचा रहे हैं, बल्कि आप उन लोगों को भी एम्पावर कर रहे हैं जो कि इस चीज के डेली विक्टिम होते हैं। ठीक है, हम लोग चुप रहते हैं कि हम लोगों को लगता है शायद ये चीज सिर्फ हमारे साथ हो रही है। ठीक है, लेकिन ये चीज सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही होती, ये चीज हर उस शख्स के साथ हो रही होती है जो आपके इर्द गिर्द होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था सैमुअल गिल का, कि हरासमेंट का जो लॉ है, सेक्सुअल हरासमेंट का, वो सारे जेंडर्स के लिए है कि नहीं। जी, ये लॉ मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जितने भी जेंडर्स पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है, ओपनली अनओपनली सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, आप इसके ऊपर जाके कंप्लेन कर सकते हैं, आप इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, इसकी हेल्प ले सकते हैं थ्रू कोर्ट, और आप इसके ऊपर आराम से इसकी जो भी इसके लीगल प्रोसीजर्स होते हैं उनको यू कैन फॉलो। उसके बाद मुझसे ही सॉरी क्वेश्चन था, एक सेकेंड, कि पर्सनल हरासमेंट के ऊपर इसको किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली आपका कोई भी अगर फ्रेंड सर्कल है, अगर आप के कुछ क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, आप उनके जोक्स को, आप उनकी जिस तरह का भी वो कमेंट पास कर रहे हैं, यू कैन बेयर इट। ठीक है, लेकिन आपको फ्रेंडशिप के अंदर या आपका कोई भी सर्कल है उसके अंदर ग्राउंड रूल्स सेट करने चाहिए, कर दें। ठीक है, कि भाई नो फैमिली रिलेटेड जोक्स, नो पर्सनल जोक्स, या नो पर्सनल या फैमिली रिलेटेड मॉकिंग। ठीक है, तो इस तरह के अगर ग्राउंड रूल्स आप सेट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि अगले बंदे को क्लियरली पता होगा कि भाई ये इस शख्स की बाउंड्री है। ठीक है, इसको हम एक इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाई एल्बो रूल, कि मींस कि डू नॉट कम इन माय पर्सनल स्पेस। ठीक है, और ये चीज अगर ऑफिसेज या स्कूल्स में हो रही है तो आप अपने टीचर्स से बात करें। अगर आपके टीचर्स या स्कूल की कोई भी मैनेजमेंट कर रही है तो आपके पेरेंट्स आपकी बिगेस्ट सोर्स हैं आप इस चीज को डील करने के अंदर। दूसरे कंट्रीज के अंदर इस चीज के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा काम हो रहा है। आप अपने पेरेंट्स से क्लियरली बात करें कि दैट टीचर, सॉरी आई कैन नॉट लाइक इन्वर्टेड डी कॉमर्स में बोल रहा हूँ, कि दैट टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, साइंस टीचर इज डूइंग दैट। ठीक है, या फिर आपका वो क्लासमेट आपके साथ ये चीज कर रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा आराम से काम यानी इस चीज को आराम से इस तरह से टैकल कर सकते हैं। मींस वही बात होती है कि आप उसको डायरेक्टली किसी से बात करें। ठीक है, जब तक आप किसी के ऊपर के साथ ओपन नहीं होंगे, आपसे कोई भी इस तरह का आप कभी भी उस प्रॉब्लम को डील नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद सैमुअल गिल ने एक और एग्जाम्पल लिया है, सॉरी, थैंक यू फरवा, आपको ये चीज समझ आ गई। सैमुअल गिल ने कहा है व्हाट अबाउट रिलीजन हरासमेंट। इसके ऊपर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो हमारा राइट है उसके अंदर मेंशन है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप किसी के रिलीजन के ऊपर बात नहीं कर सकते। इफ आई एम नॉट रॉन्ग राबिया, इफ यू लाइक वांट टू ऐड, आप किसी के रिलीजन के ऊपर बात नहीं कर सकते। तो मींस अगर ये चीज हो रही है तो यू शुड कंप्लेन अबाउट इट। इफ यू आर नॉट डूइंग
if you're not putting any complaint, if you're not raising your voice, it will be your mistake, not authorities mistake. अगर आप आवाज नहीं उठा रहे किसी भी किस्म की हरासमेंट के ऊपर, तो वो आपकी अपनी गलती होगी, वो किसी गवर्नमेंट की गलती नहीं है, वो किसी भी अथॉरिटी या जो भी हमारी सिक्योरिटी अथॉरिटीज होती हैं, जो भी हमारी, जो हमें प्रोटेक्ट कर रही होती हैं किसी भी किस्म की हार्म से, उनकी गलती नहीं है। हमारी जो हमारा ग्रुप है, जो हमारी सोसाइटी है, उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग पहले चीज अपने अंदर दबा देते हैं, फिर हम उस चीज से जो पॉइजन क्रिएट हो रहा होता है, वी आर ब्लेमिंग अदर्स, बट दैट इज रॉन्ग। वी शुड ब्लेम आवरसेल्व्स बिकॉज वी आर नॉट रेजिंग आवर वॉइस। सो इसके अंदर जैसे राबिया अपने प्रोजेक्ट की उन्होंने बात की कि ये सिर्फ एक नाम नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कि बोल के लब आजाद हैं। आप उसको अपने जो भी आपके अंदर चल रहा है, अपने लब को आजाद करेंगे तो वो होंगे। ठीक है, आप जब तक स्पीक आउट नहीं करेंगे अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने लिए, तब तक आप नो वन कैन रिलीज फ्रॉम दिस monstrous thing. जी अक्सर। Muhammad Umar has asked a question. If I send a request someone on social media, there is a harassment. मतलब ये harassment act consider होगा या नहीं? No, this is not a harassment. देखें, अभी वही तो है कि अब इस जनरेशन को ना अपने रूल्स जो है ना, एल्बो रूल्स, उनको सेट करने की जरूरत है। ठीक है, इफ अ फीमेल इज सेंडिंग रिक्वेस्ट, तो क्या मेल्स उसको हरेसमेंट कंसीडर करते हैं? प्लीज आंसर मेल्स, प्लीज आंसर इन द चैट। अगर कोई फीमेल आपको रिक्वेस्ट भेजे, तो क्या आप उसको हरेसमेंट कंसीडर करते हैं? Not at all. Okay, sorry, I cannot see the chat. Okay, so you don't. ठीक है, इसी तरह फीमेल्स को भी इसको हरेसमेंट नहीं कंसीडर करना चाहिए। फर्स्ट यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ द हरेसमेंट। ठीक है, आपको पहले रॉन्ग और राइट का पता होना चाहिए कि ये जो है चीज, ये रॉन्ग है, ये राइट है। ठीक है, तो हमें अपनी सोच को उस हिसाब से चेंज करना होगा, या उस हिसाब से बनाना होगा अपनी थिंकिंग को। तो ये हरेसमेंट नहीं होती अगर आपकी कोई प्राइवेसी या आपकी कोई, अगर सी देयर इज अ रिक्वेस्ट बटन ना, तो अगर आप चाहते हैं कोई आपको रिक्वेस्ट ना भेजे, जस्ट क्लोज इट। ठीक है, आप उसको प्राइवेट कर दें। तो आप छोटी छोटी बातों पे भी करना कि ये से मुझे हरास किया है, या ये ऐसे नहीं हो रहा, ये वैसे नहीं हो रहा, तो इसके लिए ये छोटी बातें हो जाती हैं। हमें अब मैच्योर होने की भी ज़रूरत है कि हमें पता हो कि रियलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, और फिर ही हम अपनी सोसाइटी को कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि हम गलत हैं, हम सही हैं, और तो हम कैसे इसको बना सकते हैं कम्युनिटी को, टू मेक द कम्युनिटी अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन। वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स। हमें सबसे पहले अपने आप को अच्छा करना होगा, अपनी जो माइंडसेट है उसको सेट करना पड़ेगा, अपनी सिचुएशंस को सेट करना पड़ेगा, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को फेस करना पड़ेगा, फिर ही हम अपनी सोसाइटी को सही कर सकते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। ये बिल्कुल हरेसमेंट नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी देखा था, मैंने एक दो दफा ये पहले क्वेश्चन मैंने ना बहुत जगह मैंने ये सुना है कि बॉयज की कंप्लेंट्स होती हैं कि इफ वी सेंड रिक्वेस्ट दे से वी आर बीइंग हरेस्ड, और जब उनकी रिक्वेस्ट आती है तो our reaction is not the same। तो इसी तरह गर्ल्स को भी ऐसे सोचना चाहिए और बॉयज को भी ऐसे सोचना चाहिए। एक दूसरे के मतलब देखें, वही बात है कि जैसे अपनी माँ की और अपनी बहन की इज्जत करते हैं, उसी तरह हर औरत की इज्जत करें। उसी तरह जो हमारी फीमेल्स हैं, जैसे वो उनको होता है कि जी जैसे हमारे भाई की, हमारे पापा की इज्जत होनी चाहिए, वैसे ही वो बाकी मेल्स को भी करें। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना प्रोस्पेक्टिव जो है उसको वाइड करें। अच्छा, मैं इस चीज़ के अंदर एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि मोस्टली क्या होता है, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, कि अगर किसी भी मेल को फीमेल की रिक्वेस्ट आती है, तो फर्स्टली वो क्या करता है कि ही टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट
रिक्वेस्ट और फिर वो अपने फ्रेंड सर्कल में, जो उसका एक बॉयज फ्रेंड सर्कल होता है, उसके अंदर शेयर कर देता है। सॉरी, यहाँ जितने भी मेल्स हैं, आई एम ओपनिंग अप, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इससे आप बड़े नहीं बन रहे, इससे ये नहीं साबित हो रहा है कि आपको किसी फीमेल ने रिक्वेस्ट सेंड की है, इससे ये नहीं साबित हो रहा कि आपको किसी ने प्रायोरिटाइज किया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट गुड, यू आर फर्स्टली नॉट अ गुड पर्सन, ठीक है। आप किसी भी फीमेल को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो उसके बारे में डिस्कस करके, ठीक है। और अगर कोई भी फीमेल सेम तरह का कोई भी चीज कर रही है तो इट अप्लाइज द सेम, ठीक है, क्योंकि हर किसी की एक पर्सनल रिस्पेक्ट होती है। अगर आज आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कल को इट्स लाइक फॉर एवरी रिएक्शन एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, ठीक है। टिट फॉर टैट वाली बात होती है, ठीक है। आज जैसा आप करें कल को आपके साथ भी वैसा ही होगा, ठीक है। दूसरी चीज, सैमुअल गिल ने एक रिलीजियस हरासमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन किया था। तो जो फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर ये राइट गिवन है कि हर कोई जो है वो उसको ये आज़ादी है कि वो अपना रिलीजन को ओपनली एक्सप्रेस कर सकता है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, ठीक है। अगर कोई उसको ये नहीं करने दे रहा तो इट इज़ अ काइंड ऑफ हरासमेंट। आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी लीगल प्रोसेस के थ्रू। सेकेंडली, अगर ये कोई ऑनलाइन बेसिस के ऊपर अगर कोई किसी के रिलीजन को हरास कर रहा है या किसी को मॉक कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो वो साइबर बुलिंग के अंदर आता है, जिसके अंदर राबिया ने क्लियरली बताया है कि कौन सा डिपार्टमेंट है, किसके थ्रू आपको जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवानी है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम फरवा के मिस यूज ऑफ पावर, ठीक है। इसके अंदर क्या करना चाहिए कि सॉरी, आई विल रीड इट, इज मिस यूज ऑफ पावर और बर्डनिंग समवन मोर देन हिज पावर इंक्लूड इन हरासमेंट, ठीक है। ये हरासमेंट तब आती है कि अगर आपको कोई यूजलेस बर्डन दे रहा है, ठीक है। अगर आपका काम है फॉर एग्जांपल 1000 वर्ड्स पर आवर लिखना, ठीक है, अगर आप यू आर अ कंटेंट राइटर, ठीक है, तो और अगर आपको कोई 1000 वर्ड्स का ही पे कर रहा है तो इट्स योर राइट कि आप 1000 वर्ड्स लिख रहे हैं और आपको 1000 वर्ड्स सबमिट करवाने हैं, ठीक है। अगर आपको कोई यूजलेसली 1500 वर्ड्स दे रहा है, ठीक है, और उस जो 500 एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं उसके कोई भी यूज नहीं है आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, या आपको कोई यूजलेस एरर्स निकाल के आपके सामने रख रहा है, या आपको कोई ओवर बर्डन कर रहा है किसी भी काम से रिलेटेड अपनी पावर यूज करते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस के अंदर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं और आपका बॉस कह रहे हैं जाके मेरे बच्चों के दर्जी से कपड़े उठा के ले आओ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वो आपका काम नहीं है, ठीक है। तो आप उससे डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई दिस इज डज नॉट कम अंडर माय जेडी, इफ इट डज काइंडली मेंशन दिस क्लॉज इन माय जेडी, ठीक है। अगर आपको डर है कि आपकी जॉब चली जाएगी उससे, तो आप उससे बहुत फ्रेंडली वे में बोल सकते हैं कि सर आई एम बिजी विद माय ओन वर्क, और तो इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग मोस्टली हमारे जो माशरे के अंदर ये होता है कि वी डू दिस अंडर कर्टेसी। अगर आप किसी का कोई भी काम कर रहे हैं अंडर कर्टेसी, दैट इज नॉट एन हरासमेंट, ठीक है। आपने अगर किसी को आप पानी पिला रहे हैं, आपसे बेशक वो सीनियर है, अंडर कर्टेसी उसने आपको बोला है पानी पिला दो, तो आप कर्टेसी में उसको पानी पिला रहे हैं, तो दैट इज नॉट एन हरासमेंट। लेकिन अगर वही शख्स आपको एज अ यानी स्लेव यूज कर रहा है अपने किसी भी वर्क प्लेस के अंदर, if he or she have the power, that is harassment and you should raise your voice again for it. I hope it's cleared. There is one question from Hania. If someone suffered through harassment, mostly parents say don't disclose it in front of anyone. What should anyone do in that case? Can you please repeat it? If someone suffered through harassment, mostly parents say don't disclose it in front of anyone. So what should anyone do in that case? राबिया, आप कुछ बोलोगे या फिर मैं इस पे? Sure. I would like to
put your point too, but firstly, Hania, you see, you have to talk to someone first of all. ठीक है, अगर कोई ऐसा है जिसको harassment फेस हो रही है, तो अंदर ही अंदर आप घुट के मर नहीं सकते, ठीक है, और ना ही दिस इज राइट। तो पहले तो आप या कोई भी जो है जो कि harassment फेस कर रहा है, उसको चाहिए कि वो पहले तो अपनी सिचुएशन क्लियर करे, ठीक है, अपना माइंडसेट जो है ना उस हिसाब से निकले, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप क्या करते हो, यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ना। ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी आपका कोई मेंटल प्रॉब्लम है या आपका पर्सनल प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है। आप कोई भी चीज जो है वो अनसॉल्व नहीं छोड़ सकते। तो पहले तो उस पर्सन को बात करनी चाहिए, किसी भी क्लोजेस्ट फ्रेंड से या अपने पेरेंट्स से। अगर कोई क्लोजेस्ट फ्रेंड वो ये भी इजाज़त नहीं दे रहे किसी फ्रेंड से बात करें या किसी बाहर के बंदे से बात करें, तो पहले तो उनको मनाने की कोशिश करें ना, उनके सामने अपनी सिचुएशन रखें कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ये जो पेन जो है उसको बर्दाश्त कर रही हूँ और मजीद नहीं कर सकती, ठीक है। तो पहले तो आप उनके साथ बात करें। अगर वो नहीं कर सकते तो दे आर अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्प वेबसाइट्स, आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक दो ऐसी फीमेल्स देखी हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि फ्री कंसल्टेशन देती हैं। वो एक वेबिनार में मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, और वो कह रही थी कि मैं अब शायद लाहौर या इस्लामाबाद से, तो कह रही थी कि आई हैव अ वेबसाइट और वहाँ मैंने ओपनली मैं कंसल्टेशन देती हूँ। अगर कोई फ़ी भी पे नहीं कर सकता तो मैं उनसे फ़ी भी नहीं लेती और फ्री कंसल्टेशन देती हूँ। तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर देयर टू हेल्प यू, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्प लें, ठीक है। और अगर आप इसको अथॉरिटी के पास नहीं लेके जा सकते या आप उसको नहीं कर सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद क्लियर हों और फिर आप कोई वे निकालें किसी की हेल्प लेके। बिकॉज देखिए जैसे यहाँ वेबिनार हो रहा है, यहाँ इस बारे में बात की जा रही है, तो देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल आउटसाइड जो कि इस बारे में बात कर रहे हैं, जो कि लोगों की हेल्प करने के लिए हैं। तो उनसे कंसल्ट करें, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ऐसे ऐसे उसको रास्ता अपनाना चाहिए, ये रास्ता। क्योंकि मेरे साथ अगर ये होगा कि, तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मेरा माइंडसेट है, मैं तो ये करूँगी। ऑलवेज मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई ऑलवेज कंसल्ट अ पर्सन जो कि मुझे लगता है कि ये मुझे अच्छा मशवरा देगा, ये मेरी हेल्प कर सकता है या ये मेरी बर्डन को कम कर सकता है। तो दिस इज माय बेस्ट अप्रोच। जॉन, इफ यू वांट टू ऐड जी, अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई भी पर्सनल रिलेटिव या आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट या और फॉर सेक ऑफ एनीथिंग टू कीप क्वाइट और टू शट द टॉपिक, उसका फर्स्टली उनसे उसका रीज़न जानने की कोशिश करें, ठीक है, कि उसका उस चीज़ के ऊपर, उस चुप रहने के ऊपर रीज़न क्या है, ठीक है। सेकेंडली, अगर वो इस चीज़ के ऊपर फिर भी डिसएग्री कर रहे हैं, तो जैसे कि राबिया ने कहा कि बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको फ्री आपकी बात सुन सकते हैं और आपको एडवाइस दे सकते हैं। आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके छोटे बड़े बहन भाई, या कोई भी ऐसा हो सकता है, आपके कजन्स, आपके फ्रेंड्स, उनके साथ शेयर करें। अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो चीज़ नहीं शेयर करनी, लेकिन शेयर करने से पहले ये चीज़ लाजमी ध्यान रखें कि वो बंदा क्या ट्रस्टवर्दी है, क्या वो शख्स आपका जो भी आप उससे बात करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू हरासमेंट या कोई भी आपका पर्सनल सीक्रेट, क्या वो बंदा उसको आउट तो नहीं कर देगा। तो उस बेसिस के ऊपर आप उससे बात कर सकते हैं। मैं प्लस एक फेसबुक पेज का यहाँ नेम मेंशन कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन के में, द सेफ स्पेस प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पाकिस्तान के मोस्टली शायद 70 to 80% जो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स हैं वो इस पेज के ऊपर हैं, और यहाँ लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और लोग उसके ऊपर विदाउट एनी जजमेंट उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, या किसी से बातचीत करके उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो go follow that page and you will have a very good group of people who can help you there. Plus यहाँ
कायनात का एक क्वेश्चन था कि अगर आपको कोई भी जैसे लॉ है या आपका कोई भी डिपार्टमेंट है जो आपको कह रहा है कि ये फेक हरासमेंट कंप्लेंट्स है, तो उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए? तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले जिससे कंप्लेन तो ये चीज कह रहा है, तो आपके पास कोई ना कोई उसका अगर एविडेंस भी नहीं है, तो आप उसके हायर जो उससे हायर पोस्ट पे हायर अथॉरिटी है उसके ऊपर उस कंप्लेन को लेके जाएं, ठीक है? तो इस तरह आप हायर पोस्ट पे जब लेके जाएंगे तो वो आंसरेबल होगा जो जूनियर जिसको आपने कंप्लेन की है कि भाई आपने वो फेक जो कंप्लेन है, हरासमेंट कंप्लेन है, वो किस बेसिस पे फेक है, ठीक है? क्योंकि फेक होने का भी कोई ना कोई उसके पास सबूत तो होगा ना, ठीक है? अगर फिर भी आपको लगता है कि यू आर नॉट गेटिंग एनी हेल्प, देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है? कोर्ट कैन हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। वो आपसे आपके हरासमेंट के ऊपर जो भी आप उसके सामने सबूत पेश करेंगे या फिर आपका कोई भी सिनेरियो पेश करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम कोर्ट। जी जॉन, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। लेकिन मेरा ख्याल है कायनात पूछना चाह रही हैं कि जो लॉज हैं उनका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, ठीक है? अच्छा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी फेक कंप्लेन कर देते हैं ना, कि सिचुएशन ये नहीं होती, तो किसी के ऊपर फेक एलिगेशन लगा देते हैं। तो इसका भी सोल्यूशन है। वी हैव नोन लॉट ऑफ सेलिब्रिटी इश्यूज जो कि इस बारे में हैं, और उनके केसेस काफ़ी देर से चल रहे हैं, और अल्टीमेटली वो फेक साबित हुए कि जो भी उनकी एलिगेशन थी वो फेक थी। तो अगर कोई फेक देखें, अगर कोई हरेसमेंट का किसी पे केस कर रहा है तो दे मस्ट हैव द एविडेंस, ठीक है? उनके पास एविडेंस, क्योंकि जो लॉ है, जो कि कानून है, वो तो एविडेंस से चलता है। तो अगर वो प्रॉपर एविडेंस कोई ना ढूंढ पाएगा तो फिर वो जो फेक एलिगेशन होगी वो रद्द कर दी जाएगी। अब तक जो मैं वही आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, अब तक जो एक्ट बन चुके हैं, जो कि लॉज बन चुके हैं, जो कि एक्शंस हैं, वो हमारे पिछले 10 सालों से वे बेटर हो चुके हैं, वे स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं। बिल्कुल। और मैं आई फील वेरी प्राउड। जब मैं ये सारे एक्ट्स पढ़ी थी तो आई वाज शॉक्ड कि हाँ ये एक्ट जो है वो पाकिस्तान में है, क्या इन पे काम हो चुका है, क्या ऐसे केसेस सॉल्व हो चुके हैं? तो जब यू गेट टू नो अबाउट ऑल दिस तो आपको बहुत तसल्ली भी होती है और आपको खुशी भी होती है कि जी ये हो रहा है, वी आर एडवांसिंग। एक हारिस का ही एक कमेंट था कि हमें अवेयरनेस पे ज्यादा काम करना चाहिए या हमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज पे काम करना चाहिए। देखें, बोथ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो दोनों चीजें हैं ना, implementation of laws is not our job. हम लोग एक्ट बना सकते हैं ना, हम लोग लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, बट हम लोगों को कोई लगता है कि ये चीज एक्ट बननी चाहिए तो वी कैन पास द बिल, वी कैन फाइल द बिल। हम जो हमारी पार्लियामेंट है, हम उनको बिल फाइल कर सकते हैं कि जी ये जो चीज है, हम चाह रहे हैं कि इस चीज के बारे में कोई एक्ट बने, ये इशू है, इसके बारे में आप एक्ट बनाएं, ठीक है? ये एक प्रोसेस होता है, वो आप कर सकते हैं फ्रॉम बिल टू पब्लिक इशू टू लॉ मेकिंग। ये पूरा एक प्रोसेस हो सकता है। आप हुकूमत जो पार्लियामेंट है उसको कोई भी अपना इशू जो है वो फाइल कर सकते हैं, और फिर उस पर वो एक प्रॉपर प्रोसेस चलता है। अगर पार्लियामेंट उसको अग्री करे मेजोरिटी तो उसका एक एक्ट बन जाता है। तो ये काम है गवर्नमेंट का, हम सिर्फ उनको अपना इश्यूज बता सकते हैं। या अगर हमें नजर आ रहा है कि ये जो लॉ बना हुआ है ये उसकी वायलेशन हो रही है तो हम उसके खिलाफ जो है कंप्लेन कर सकते हैं। जो अवेयरनेस का काम है वो जो है, मेरा ख्याल है उसमें जो मेजर हाथ है ना अवेयरनेस में, वो हम आवाम का आता है। गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट कर सकती है, जो कि अभी वो कर रहे हैं। यूएनडीपी का प्रोजेक्ट है, इसमें एचईसी इन्वॉल्व है, इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है, कामयाब नौजवान इन्वॉल्व हैं। तो वो दे ट्राई कि वो कुछ करें, ऐसी एजेंसीज एनजीओज के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स करें। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को कौन चलाएगा? इन प्रोजेक्ट्स को पब्लिक ही चलाती है, इन प्रोजेक्ट को पब्लिक ही इनकी रीच बढ़ाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो हैं अवेयरनेस पे जो हम काम कर सकते हैं हम वो करें। और बोथ द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में बोलना बहुत बहुत ज़रूरी है, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। Okay. और Thank you, Rabia. We are drawing towards the close of our session, and I would like to know if both of our guests have any closing remarks.
that they would like to share with our audience. Okay, if like I just before that I just want to explain there are two questions in the comment section in the last. Sorry for your time, audience time and other everyone's time. But the questions are अच्छा, very clear. पहला We should address them, I think. yes. First question है कि if a person harassed by his own mistake, for example, ठीक है, मोस्टली ये होता है कि हम लोगों को अपनी पर्सनल स्पेस में एंटर होने का मौका दे देते हैं, ठीक है, हम लोगों को ये मौका देते हैं कि वो हमारी पर्सनालिटी पे मॉक करें, या फिर वो हम लोग फर्स्टली उन जोक्स को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम फर्स्टली ये हमारी अपनी गलती होती है कि हम लोग अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट कर रहे होते किसी भी अदर पर्सन के साथ, ठीक है। अगर सेकेंडली अगर आपने किसी को अपनी पर्सनल स्पेस में आने दिया है तो देन यू हैव एवरी राइट टू टेक दैट पर्सन आउट, ठीक है। अगर आपने किसी को ये इजाजत दी है कि वो आपके पर्सनल हरास करे आपको, ठीक है, तो आप उसको किसी भी मोमेंट में लाइफ पे उसको उस स्पेस से खारिज भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन था कि अ बॉय इन, आई होप दैट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन्ड। सेकेंड क्वेश्चन था अ बॉय इन अ रिलीजियस प्लेस विद शॉर्ट्स, ठीक है। ये हरासिंग हो सकता है दूसरे लोगों के लिए क्योंकि रिलीजियस प्लेस के कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है, एक ड्रेस कोड होता है, आपको उस प्लेस की रिस्पेक्ट करते हुए वो चीज फॉलो करनी होती है, और ये हमारे रिलीजन के अंदर बहुत वेल एक्सप्लेन चीज है, ठीक है, कि आपको किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए इफ यू आर एंटरिंग इन एनी रिलीजियस प्लेस। अगर वो ये चीज कर रहा है कोई भी शख्स, ठीक है, वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, इन प्रॉपर अगर कोई ड्रेसिंग कर रहा है, तो अगर आप उस चीज से हरास हो रहे हैं तो फर्स्टली इफ he or she is in your circle friend group, if you are comfortable with that person telling that, तो आप उससे डायरेक्टली बात करें कि इट्स इनअप्रोप्रिएट, और इफ इट्स नॉट देन टॉक टू द लीडर ऑफ दैट रिलीजियस प्लेस, इट कैन बी any person who is leading the position. You can ask him or her to deal with that issue. Nice explained. जी राबिया। जी बिल्कुल, हमारा जो लॉ है, हमारा जो कानून है, वो इस चीज़ की हमें इजाज़त देता है कि हम जो है वो अपने रिलीजन को सही तरह प्रैक्टिस कर सकें, और अगर एनीबडी हमारे उन रूल्स को या किसी को भी रिलीजियस हर्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, कि अगर आप किसी के रिलीजन पे बात करें या उनको हर्ट कर रहे हैं रिलीजियसली, तो इस पे आप अगेन जा रहे हैं लॉ के। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर तो वो बंदा नहीं में से मान रहा, हो सकता है कि उसको ना पता हो कि मतलब उसको ये सेंस भी ना हो या उसको कुछ भी पता ना हो, तो यू कैन टॉक टू हिम और हर, और अगर इन केस वो ना माने तो यू टेक द लीगल एक्शन। आप बड़े जो हैं वहाँ के उनसे बात करें, अगर वो भी ना माने तो यू कैन टेक द लीगल एक्शन। बस ये बात ये ना कि अगर बंदे को वही कि अवेयरनेस होगी तो वो उसको फॉलो करेगा ना। So I think we are closing towards end. Every question is answered, right, Aksa? Almost. So we have come to the end of our session. Thank you so much, Rabia and John, for sparing some time joining us today in this discussion. It was such an informative session for all of us today. Thank you to all the participants who joined us. If someone want to give us a feedback, I'm going to unmute you all. You can unmute yourself, and जो भी आपके remarks है आप देख सकते हैं. Stay safe, stay aware. Thank you.